अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई हैव फाउंड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई है, रिचर्ड एंड सुसन हाइडन एकेडमी फेलोशिप 2025 इन लंदन, जो कि फुल्ली फंडेड है। और इसमें अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, देन यू शुड अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी because it is open to all the nationalities of the world, and it is fully funded fellowship for 10 months. And then there is no application fee. And what is the purpose of this fellowship is to develop a leadership skills to and expand professional networks. So what you are going to do during these 10 months, participants will conduct in-depth research on a topic of their choice. Applicants from various backgrounds including government, research academia, civil society, journalism are welcome to apply. So आप look, there are multiple उन्होंने आपको sectors दे दिए हैं. If you are working in a government sector, if you are doing any research work relevant to any field, or you are working in academia like you are a teacher, professor, or you are a student even, तो सिविल सोसाइटी के अगर आप मेंबर हैं and if you are working in a journalism sectors, then you can apply and you can demonstrate your working profile to them, और फिर आप इसमें सिलेक्शन भी हो सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई है, स्पेशली फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम जो कि फुली फंडेड होते हैं. एंड दे आर नॉट ओनली, मतलब ये आपके प्रोफाइल में एक एडिशन होता है बिकॉज इट इज़, बट ऑल्सो दे आर गोइंग टू ओपन अ वेरी लिस्ट ऑफ और सीरीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन अपकमिंग, मतलब फ्यूचर में आपको मज़ीद भी मिल सकती हैं अगर आप फर्स्ट स्टेप आप ये कवर करते हैं. तो इसकी डिटेल्स जो हैं, ये होस्ट कंट्री इसका यूके है. चैथम हाउस लंदन का जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है. 10 महीनों का होगा और फेलोशिप अक्टूबर 25 से जुलाई 26 के दौरान होगी. And then it is fully funded and the last date is 19th March. So you see that I'm making video on the 6th of the March and you don't have much time to apply for this opportunity. So what are the career benefits, financial benefits you are going to take? You are going to take this money it as a monthly stipend and for the living expenses, and you see that it is worth, means very एक अच्छा handsome amount है to just to live and just to for your living expenses. You are going to get the airfare train from means accommodation आपको यहाँ से मिलेगी, and visa cost आपको मिलेगा, health care आपको मिलेगा, and then the expenses जो हैं वो during the travel conferences and publications के जितना भी process में the expenses हैं, this school is going to cover all these financial cost. So who can apply for this? As I have told you before this, but first of all, it is open to all the nationalities. BA degree, if you are a bachelor's or equivalent required with the research experience. आपका research experience इनको जो required है उससे match कर जाता है, then you are likely to get selected, inshallah. So open to the early and mid stages of the career from academia, NGOs में work है, business relevant, you are government servant, you are civil society member, and you are from the media sector. Then these are the professional backgrounds they are requiring for this opportunity. So what is the knowledge and interest? You must possess the knowledge and interest in the international affairs. Okay, you are going to tell them that this my interest relevant to this opportunity. All applicants should possess knowledge and an interest in the international affairs. देखिए, जब कभी हम किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हैं, नो मैटर इज़ अ स्कॉलरशिप, इट इज़ अ फेलोशिप, इट इज़ अ इवन फॉर द जॉब, सो यू मस्ट हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट कि आपका उसी फील्ड में इंटरेस्ट है. फॉर दिस पर्पज आई यूजली से दैट यू मस्ट हैव टू मेक अ वेरी फ्रेश CV फॉर अ फ्रेश किसी भी जॉब या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ फ्रेश CV. आपको उससे रेलेवेंट अपने आप को शो करना ही चाहिए इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड. ठीक है, डोंट यूज़ सिंगल CV फॉर मल्टीपल पर्पसेस. ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? एक तो CV चाहिए, 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए, एंड द एप्लीकेंट्स प्रपोजल फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट बेस जो है, यहाँ पे इन्होंने टॉपिक ऑफ द गाइडेंस दिए हुए हैं, ये में भी आपको इसके बारे में भी हम बात करते हैं. तो इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा कि रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आपका क्वालिफिकेशन देखना है इन्होंने.
and have a relevant background experience in the field of proposed research. आपका relevant means it should be very relevant, because sometimes स्टूडेंट जब मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, दे आर सेइंग दैट वी आर डूइंग एन अकाउंटिंग फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं, बट फॉर दिस पर्पस मतलब अगर हमने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है या फिर हमने किसी भी मतलब हमारा पर्पस जो है वो किसी भी तरह इन कंट्रीज़ में इन होना है, तो हमें कोई भी आसान लाइक टूरिज़्म अकाउंटिंग स्टूडेंट शुड नॉट चूज़ टूरिज़्म, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आपका रेलिवेंट फील्ड से बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है सिलेक्शन प्रोसेस में, एंड देन यू हैव टू बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। योर इंग्लिश शुड डिमॉन्स्ट्रेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। आपका वहाँ पे देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड देयर स्पीकिंग जो है वो इंटरनेशनल्स के साथ इंग्लिश में बात करेंगे। सो हाउ टू अप्लाई फॉर दिस? सो दिस इज़ द लिंक where you are going to apply. So I'm going to open it. So before that I am going to talk about what are the topic of the guidance. ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे ये चैथम स्कूल जो है इज़ गोइंग टू कंडक्ट इतना बड़ा रिसर्च और फेलोशिप जो है वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। सो कमिंग टू दिस चैथम हाउस, सबसे पहले वो उनका है एप्लीकेंट शुड केयरफुली कंसीडर द चैथम हाउस का मिशन क्या है, values and objectives, and while ensuring the research proposal align with the focus of their chosen research program and what are the key topics they have to, highlighted this कि देखिए अफ्रीका के लिए अगर काम करना है तो पीस एंड सिक्योरिटी इन द ऑन ऑफ अफ्रीका, रीजनलाइजेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट राइवलरीज एंड एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंसेस इन द कॉन्फ्लिक्ट। जब हम मीन्स वैसे तो हमारे लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, बट स्टिल देयर आर सम पीपल दैट हैव अ बिग एक्सपीरियंस इन फील्ड से रिलेटेड, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स या एकेडमिया के लोग या जर्नलिज्म के लोग दैट आर वर्किंग फॉर द अफ्रीकन पीस एंड सिक्योरिटी, कि उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी रीजनलाइजेशंस के बारे में वो काम कर रहे हैं। लाइक एक रीजन से दूसरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट किस तरह एंटर हो रहा है, लाइक सिविल वॉर्स हो रही हैं और डोमेस्टिकली जो इनकी इंस्टेबिलिटी है वो क्रिएट हो रही है, या इनकी जो स्टेट के अंदर ही जो राइवलरीज चल रही हैं, मतलब जो दुश्मनियाँ उनकी चल रही हैं, एंड द एक्सटर्नल पावर इन्फ्लुएंसेस इन द कॉन्फ्लिक्ट्स के जो एक्सटर्नल पावर जो हैं वो अफ्रीका में एंटर हो रहे हैं। एक्सटर्नल पावर्स अफ्रीका में देर आर सीरीज ऑफ मीन लिस्ट ऑफ द सिविल वॉर्स, तो उसमें इंटर स्टेट राइवलरीज भी हैं और उसमें एक्सटर्नल पावर्स का भी इन्फ्लुएंस है। सो एज अ स्टूडेंट एंड एज एन एकेडमिया फील्ड, जिस इंसान का इससे रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, ही शुड डिमॉन्स्ट्रेट कि मैं अफ्रीका के बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ। I'm not going to discuss all these topics because it will take a long time. And environment and society के बारे में कुछ लोग जिनका experience है, energy and security, accelerating energy transition in a rapidly shifting geopolitical and policy context, and cooperation of the sustainable resource, like these are the environment and society topics. यूरोप के बारे में अगर आपकी यूरोपियन competitiveness and future prosperity के बारे में if you have a research, if you have an interest कि आप उनको demonstrate कर सकते हैं कि हम यूरोप के बारे में और उसके future prosperity के बारे में we have a research work and we have a journalist हैं हम और हमने इसके ऊपर कुछ research work किया हुआ है, then you are going to apply for this. Then the global health and then international security, yes. Like new approaches to the European security, responsible state behavior in the outer space of the cyberspace and accountability. So आप एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होना चाहिए आउटर वर्ल्ड के लिए, साइबर स्पेस और उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, साइबर स्पेस को ये किस तरह हाईलाइट करें कि हर उस इंसान को अकाउंटेबल होना चाहिए, उस स्टेट को होना चाहिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मींस मद्देनज़र रखते हुए। लाइक एवरी स्टेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड शुड बी अकाउंटेबल। अगर उनकी साइबर स्पेस पे किसी तरह का अटैक हो रहा है या उनकी साइबर स्पेस किसी और कंट्री पे अटैक करे, तो द कंट्री शुड बी, देर आर द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑल्सो कि उनकी साइबर जो है मीडिया ने या लोगों ने दूसरे कंट्रीज़ की साइबर स्पेस पे अटैक किया है। सो लाइक दिस इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैटर्स। दैन द लैटिन अमेरिका के बारे में अगर किसी की है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन द क्रिटिकल मिनरल्स
एंड मेटल्स एंड द स्टेट कैपेसिटी, एंड देन मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के बारे में अगर किसी की है तो लाइक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एंड द गर्ल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जियो पोलिटिकल शिफ्ट. सो दीज आर द वेरी गुड एरिया जिनके ऊपर रिसर्च वर्क अगर हो तो ये एक थियोरेटिकल थिंग आ जाती है और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड्स आ जाती हैं ये सारी की सारी. Russia and the Eurasia and like this impact of the Russia's war in Ukraine and other state in the region. रशिया ने जो यूक्रेन पे वॉर किया है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑन द अदर स्टेट इन द रीजन की जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके ऊपर व्हाट इज़ द इम्पैक्ट. दैन द यूके इन द वर्ल्ड ऑल्सो उन्होंने अपने कंट्रीज़ के बारे में भी कुछ रखे हैं लाइक द स्ट्रेटजी एंड रोल इन द पावर कंपटीशन बिटवीन यूएस, EU एंड चाइना. यूके जो कि अभी कुछ अर्सा पहले ही सेपरेट हुआ है, उसका जो है उसका पावर कंपटीशन के बारे में उसका रोल क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, कैसे वो यूएस के साथ compete कर सकता है, यूरोप के एंटायर यूरोप के साथ, ये चाइना की जो प्रॉस्पेरिटी और या जो पावर कंपटीशन है उसके साथ वो उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए. सो इफ़ अ पर्सन हैज़ अ रिसर्च वर्क डन दिस टॉपिक इज़ फॉर देम. एंड द यूएस एंड अमेरिकन, द यूएस चेंजिंग ग्लोबल रोल एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द इंटरनेशनल ऑर्डर. तो ये तमाम टॉपिक हैं जिनको मैंने अपनी तरफ से बहुत डिटेल में जो है वो मैंने बताने की कोशिश की है. यू शुड रीड इट बिफोर दिस एंड अगर आपका कोई रेलेवेंट इसमें है टॉपिक देन यू शुड डिमॉन्स्ट्रेट एंड यू शुड अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, कमिंग बैक टू दिस, हम देखते हैं कि इसका अप्लाई का प्रोसेस क्या है. आई विल जस्ट गो थ्रू इट वेरी फ्रीक्वेंटली. दिस इज़ द चैथम हाउस का जो है वो मेन पेज है. लाइक जब मैं इस वेबसाइट पे आऊँगी अपना इस पे, एंड दिस इज़ द इनका ये मेन पेज है. ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है, हाउ लॉन्ग एंड वेयर एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड इसका बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ. डॉक्यूमेंट एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है चलिए वो एक बार देख लेते हैं. First of all, they are saying that you must have a experience conducting independent research and hold करें undergraduate. वैसे ये मैंने आपको पहले बता दिया है. Have a relevant background experience. You must have a demonstrate करें CV के साथ and have proven leadership experience and commitment to the Chatham House का mission and goals. Like I have demonstrated that these are the goals of their core goals. And be able to communicate the how fellowships enables the positive impact. You have to communicate through they will take the Zoom interview if you got selected. Show motivation to undertake the fellowship and meet all the fellowship के जो भी deliverables हैं and take the full advantage of the networks events opportunities offered by the Chatham House and demonstrate English proficiency. So this is their selection criteria. And इस process क्या होगा, first stage पे the complete application आप करेंगे जो भी आपको बताऊंगी. Once the submission of the period ends, all applications review होंगी and shortlisted by the selection committee. दूसरी स्टेज पे क्या होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जूम के साथ उसका इंटरव्यू हो जाएगा. सो हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, द वीडियो इज़ टेकिंग लॉन्ग. अप्लाई फॉर दिस जॉब में आ जाएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है. दीज आर द क्वेश्चन के ऑल द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव कम्प्लीटेड द बैचलर डिग्री. अगर आपकी कंप्लीट है, ये इस टाइम मैं रिचर्ड रिसोर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, आप ये पढ़ लेंगे बिकॉज मैंने ये इसका पेज देख लिया. हाउ मे बी कंसीडर्ड कि अगर आपको इसमें नहीं होते तो दूसरा आपका ऑप्शन क्या होगा, तो आप बता देंगे कि मेरा दूसरा ऑप्शन क्या है. ठीक है, सम ऑफ आवर फेलोशिप्स आर सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, तो आपने बता देना है कि अगर आप इसमें से होते हैं तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है. उसके बाद फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग चैथम हाउस रिसर्च. तो आपने वो बता देना है कि आपका इसमें इंटरेस्ट एरिया क्या है. लाइक मैं ग्लोबल हेल्थ जस्ट फॉर द गो अब मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ. एंड देन प्रपोज्ड टाइटल ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट. अगर आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ है तो उसका टाइटल आपने यहाँ पे लिख देना है. प्लीज़ लिस्ट करनी है 3 रिसर्च क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर. ऐसे कौन सी एरियाज हैं यू आर लाइकली टू एक्सप्लोर इफ़ यू गेट सिलेक्टेड. तो आपने बता देना कि मेरे माइंड में ये क्वेश्चन हैं इस टॉपिक को रेलिवेंट, जो आपका रेलिवेंट टॉपिक है उसको देखते हुए, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस. एंड प्लीज़ आउटलाइन द मेथडोलॉजी यू वुड एम्प्लॉय टू आंसर दीज क्वेश्चन सक्सेसफुली. ठीक है, तो उसमें आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे और उसमें आपके पास मेथडोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू एक्सप्लोर. जब आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे 200 वर्ड्स का आपने वो यू हैव टू रिस्पॉन्स यहाँ पे पुट कर देना है. प्लीज़ प्रपोज अ टाइम लाइन फॉर कंडक्टिंग योर रिसर्च इन 10 महीनों में आपने प्रपोज करना है एक टाइम लाइन. ठीक है, कि इस रिसर्च पे आप किस तरह काम करेंगे. व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स,
potential impacts or the contribution of your research. You have to write it in 150 words, and please outline how your proposed research aligns with the Chatham House. So once again, I am saying that you must align your research and your interest areas to the Chatham House. You have to tell them that my research areas are aligned with your school, like Chatham House school के साथ मेरा align करते हैं. The Leadership Masterclass program will help you, the participant, build the leadership skills and develop the independent thinking and global policy issues. What you hope to gain from the program and how you will use the skills gained drive positive change after the fellowship. तो आपने इसका you have to respond this. If you believe your research proposal could align with the objectives of the second program other than the one listed above, then आपने please कर देना है, ठीक है. रिसर्च प्रपोज कुड अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव द सेकंड प्रोग्राम के साथ अलाइन. मैंने ग्लोबल हेल्थ किया तो मेरे को ग्लोबल हेल्थ जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के साथ अलाइन करता है. अगेन प्लीज़ प्रोवाइड अ ब्रीफ पर्सनल स्टेटमेंट एंड आउटलाइनिंग योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग. तो यहाँ पे अपने एक मोटिवेशन यहाँ पे लिख देना है. आपको ये वीज़ा चाहिए, येस नो. यू हैव एन एग्जिस्टिंग वर्क इन द UK, येस नो आपने कर देना है अगर है तो. The Academy is also preparing for the future fellowship open to the Russian citizens and dual nationalities of the Russia living in exile and by selecting yes below. अगर नहीं है तो आप रशिया से बिलोंग नहीं करते, you will hit the no. I confirm ये इन्फॉर्मेशन ठीक है. आई अंडरस्टैंड कि अगर इम्प्रॉपर होगी तो फिर आई अंडरस्टैंड दिस एकेडमिया जो है मुझे कर सकता है. आपने कहाँ से मिला है आपको, ठीक है, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, कुछ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है. एंड देन दिस द पर्सनल इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे नाम अपना, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना CV अपलोड कर देना है. एंड देन यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन, ठीक है. ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा. ओके, वन मोर थिंग दैट आई फाउंड व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट दिस, कि इन्होंने ये बात बहुत क्लियरली आप बोली है कि आपका जो भी आपने यहाँ पर इन क्वेश्चंस का जो आपने रिस्पॉन्स करना है, लाइक देयर आर 2 to 3 क्वेश्चंस जिन ये 250 वर्ड्स हैं, 3 to 4 क्वेश्चन हैं जिनका आपने रिस्पॉन्स करना है. दैट शुड नॉट बी AI drive. Like you cannot take it from the ChatGPT and then copy paste. They want to listen from you. They are going to give you a fully funded fellowship. So you must demonstrate कि मेरा जो है ये मेरा खुद का self written response है. Because उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगना उनको आपको रिजेक्ट करते हुए. रिजेक्शन इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस फॉर दैम. 1 सेकेंड लगता है रिजेक्ट करने में. But to get selected, they are going to read your each and every word. It should demonstrate your interest. It should demonstrate that you have written all these answers by yourself and you really have some question in your mind and you want to explore through some methodologies. So you have to demonstrate, okay? So this is the video of the day and I hope you like this video. And if you have any sort of questions still, if you want help from me, then my WhatsApp number is also in the description below. But try to apply for this fellowship because it is a very very good opportunity that I just go through during this applying just for surfing. मैं surfing कर रही थी and I just found it. Queen Elizabeth II Academy fellowship program है ये. So try apply here and reach UK as soon as possible. And thank you so much for watching the video. Take care. Allah Hafiz.